Times now. Action begins here. An anti-corruption activist, a former civil servant, a firebrand political personality, and above all, the face of the common man. 65 साल से इन पार्टियों ने अपने को धोखा दिया, इस बार हम धोखा देंगे। पैसा दोनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू। भारत माता की Arvind Kejriwal began a new era of politics in India. अगर हम किसी को रोजगार दे नहीं सकते, तो किसी का रोजगार छीनने का हमको अधिकार नहीं। His dictum, change begins with small things. His propaganda, turning the wheels of corruption. His strategy, bringing the rage of people at government's doorsteps. This quintessential outsider has taken over the mighty powers, making him earn a unique place in Indian politics. 10 in the morning and Arvind Kejriwal is all set to leave from his residence in Kaushambi. Flurry of activity already because this car gets ready about 10 minutes before he arrives. This is the team members who in fact receive a call and they are all prepared. In fact, we'll just talk to them. This is Rohit and Rohit has been assisting and driving for Arvind for over 1 year now. Rohit, आप कितने टाइम से हो वैसे Arvind के साथ मुझे बताओ स्टार्टिंग से? 2.25 साल तो अरविंद के साथ हो गए। हाँ। बाकी वैसे मूवमेंट को मिला के 3 साल। तो मैं तब से आपको देख रही हूँ कि अपना सब नौकरी वोकरी छोड़ के आप लगे हैं अरविंद के साथ। एक्सपीरियंस कैसा? अभी भी होपफुल है कि पार्टी आनी है? अगर होपफुल ना हो While we are talking to them, that's the security there. Arvind has now, in fact, is coming out of his residence. We'll just try and speak to them. And hello, Arvind. So Arvind already is very smiling and hopeful. How are you? Final campaigning कैसा तैयारी? Are you ready? Are you hopeful? Yeah, people of Delhi are ready. They are ready? हाँ। आप कितने confident हैं अब? पूरे कॉन्फिडेंट है, जनता कॉन्फिडेंट है। हम आपको आज follow करने वाले हैं पूरा दिन. you're So most thank you so welcome. much. Thank you. So Arvind will leave. We will follow him. We don't want to disturb his schedule. But last phase of campaigning, he looks smiling. He's excited. But that also means that the controversies with regard to Arvind and with regard to Aam Aadmi Party will follow. What happens for the rest of the day? We will continue to track Arvind Kejriwal. आपने जो ट्वीट किया उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? ये चारों तरफ से दिल्ली से खबरें आ रही हैं। हमारे कई वॉलंटियर्स ने भी मुझे शिकायत की है कि दूसरी पार्टी वाले उनको काफ़ी पैसा देके काफ़ी पैसा ऑफ़र कर रहे हैं, किसी को 30,000, किसी को 1 लाख रुपए, और उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने सारे वॉलंटियर्स को यही मैसेज दिया है कि अगर कोई आए तो उससे पैसे ले लो और उसका स्टिंग कर लो। We spend a day with Arvind shadowing his campaign trail across the heartlands of Delhi. Arvind's first halt is at the VP house for a meeting with his party workers and spokespersons. Before heading out to the Jan Sabhas, which are the public meetings that he's been holding, Arvind Kejriwal has in fact dropped by at this office in central Delhi. This is one of the party offices, and what he's decided to do is inside he's having a meeting with some of the spokespersons of the party, while just outside these are some of the workers, the volunteers who are busy with their job. Now their profile, as we can see, is to manage the internet, to manage mails, to manage the Twitter and the Facebook accounts. And even though this is only one section of many offices that Arvind Kejriwal has, this meeting is very important. It is with the leaders, how to tackle the controversies, the strategies, the BJP attack, and how can we really, in fact, keep the Congress away. These are some of the strategies that have been discussing. And one of the strategies being followed by the Aam Aadmi Party these days is the attacking politics, which has forced the BJP and the Congress to defend. From here, Arvind will now leave for all the public meetings. How many people arrive? What is the supporter turnout? That we will, of course, check out. With a huge network of informants and volunteers, Kejriwal's team is constantly on his Twitter and Facebook page. There's
There's just been a long meeting in this Aam Aadmi Party office. Atishi is one of the spokespersons. In fact, Atishi, we're in fact trailing Arvind Kejriwal for 24 hours, and you're one of those spokespersons. I just want to know, how was the meeting? What was discussed? The strategy? Can't tell us the details, but what is really happening in the party? 10 days to go. I think everyone is upbeat. Things are looking very good. There's a groundswell of support which is coming in our favor. Each of our Jan Sabhas is attended by thousands of people. So I think it's the last mile to go. And on 14th of February, we are confident that Arvind Kejriwal is going to be the Chief Minister once more. But do you think the strategy is fine? The strategy has been attacking politics. BJP Congress is defending. Sometimes Kiran Bedi is being attacked, somebody else. Do you think that's really working for the party? That's a good strategy. Our strategy is to present a vision for Delhi, and that is what we have been doing in the past few months. We've been presenting a vision about how to make Delhi a city which is Wi-Fi enabled. We've been presenting a strategy about how we are going to open new colleges. We've been presenting a strategy of making water and electricity affordable. So our strategy is to present a vision for Delhi. And my final question is, on one hand, while you are with your attacking politics, Kiran Bedi has even decided to stop talking. She's not reacting, she's not speaking to media person. She's citing a throat infection, but do you think that is really it, or perhaps it's something else? Well, we have been repeatedly asking her to come out and speak on the issues of Delhi because the people of Delhi want to know what is it that she thinks on the issues of education, of health, of getting jobs for the people of Delhi. But she has repeatedly stopped coming out and wanting to debate with anyone. I think that does raise a question. Does she even understand Delhi? And this is talk to media also now. Well, what can I say? I think you know better than me about that. Okay. The VP House office of the Aam Aadmi Party, but they're just having these spokespersons meeting. There is media flurry of activity as well. It's very interesting. Just days ahead of Delhi elections, the Aam Aadmi Party is brimming with activity, also because it is confident, also because it is hopeful that Kiran Bedi perhaps failed to be the game changer. And while we have Ashish Khaitan also, we are following Arvind at the Aam Aadmi Party for 24 hours. We spoke to Atishi. You had a spokesperson's meeting. What is the strategy that is being discussed? Well, there's no Specific. there's no new strategy. It's our old strategy, which we have been practicing for the last 8 months. That look, we have a definitive roadmap. We have a vision for the people of Delhi. How we are going to make Delhi a livable, a prosperous, a better city. And that's what we are going to present before the people of Delhi. And look, if you have been following us closely, on every issue we have been giving a roadmap, a vision, and an actionable program. BJP keeps a system where they look very innocuous, but they have a methodology which has been practiced against Atal Bihari Vajpayee in the past on temple movement. It has been practiced against Advani ji since Modi took over all these years. And it has been done with Sri Jaswant Singh, who was forced to keep his mouth shut or leave the party. They have a methodology, and Kiranji is getting the first test of her internship with BJP leadership. Do you think it is perhaps because there have been controversial statements which the BJP had to, in fact, retract from? Is it to save more bloopers? Is this a self-goal that is being scored here by the BJP or by Bedi? Kiran Bedi ji has spoken out of turn on many occasions since she got identified by BJP as the Chief Minister face. But we don't want to focus on that so much because Delhi needs relief, Delhi needs vision, Delhi needs clarity of thought. And that's why we had suggested a debate. Yeah. This will be But the biggest solution. She had also encouraged the debate. She is debating indirectly. She is not coming in an organized manner through some channel, through some kind of a system which is suitable for voters. Do you really think that this is the time that the BJP is getting a little worried, a little concerned about how Kiran Bedi's statements are creating further controversies? We do not want to really go any deeper about Kiranji's relationship with BJP, but voters are asking for more clarity. Voters are asking for more voice, not silence. This is not time of silence. These are last 7 days. And all questions are now on the table from all sides. Even Congress has come out with a manifesto in good time. So BJP must realize that keeping their chief minister's candidate silent when the adversary, Shri Arvind Kejriwal, is making half a dozen meetings per day and half a dozen television interviews, I think this deafening silence is not going to be very productive for them. अरविंद को उधर बैठा दो। अरविंद आप उधर बैठ जाइए। बहुत हैसल हो जाता है अरविंद। जन का बहुत लंबा है, चिंता मत करो, आप करा देंगे।
After an hour-long strategic meet, Arvind now sets on for a busy campaigning trail. Arvind, from that IRS officer to now a politician, what is the experience now been like? How are you going to now take over? There's this certain life span that you've seen. अपने लिए नहीं जी रहा, तन मन धन परिवार सब कुछ मैंने देश के लिए और समाज के लिए दांव पे लगाया हुआ है। कभी भी मैं अपने लिए नहीं सोच रहा, सब कुछ निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। Is this cabinet versus Kejriwal, or do you think they'll मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ ये रिएक्शन है और आप देखोगे कितनी एनर्जी है लोगों में जो हमारे सभा में आए, चीयर करते हैं। दूसरा, उस सबसे क्लियर है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। जनता ने मन बना लिया कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है। द पीपल हैव डिसाइडेड। ओपिनियन पोल्स अभी तक उल्टा दिखा रहे थे थोड़े दिन पहले तक, बिकॉज 10 दिन का गैप रहता है ओपिनियन पोल्स का। अब तो ओपिनियन पोल्स ने भी कहना चालू कर दिया कि आम आदमी पार्टी को 50% वोट मिल रहे हैं और बीजेपी को 40% वोट मिल रहे हैं। तो ये तो क्लियरली होता जा रहा है कि अब दिल्ली में ये चर्चा नहीं हो रही कि आम आदमी पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, वो तो तय हो गया कि जीतेगी। अब चर्चा ये हो रही है कितनी सीटों से, शर्त इस पे लग रही है कितनी सीटों से जीतेगी आम आदमी पार्टी। आपको लगता है कैबिनेट भी फेल हो गया आफ्टर किरण बेदी व्हेन द कैबिनेट लिटरली वाज ऑन? लिटरली डेस्परेशन हो गई है बीजेपी की। क्यों? महाराष्ट्र में तो उन्होंने कैबिनेट नहीं उतारी थी, हरियाणा में तो नहीं उतारी थी, यहाँ पे सारी कैबिनेट 200 MPs सारे ओबामा जी सबको ले आए दिल्ली। मतलब How did you find that controversy when she said Obama is? Did you think that was interesting? Were you surprised or या आपको मतलब इट शोज कि ऐसे लग रहा है जैसे ओबामा जी को भी वो दिल्ली का चुनाव जिताने के लिए लाए थे। आपको नहीं लग रहा डेस्परेशन हो गई हम लोग? Swarms of people gathered. The residents of Mangolpuri welcomed their common leader with a lot of hope and fervor. आज रात कौन को नींद नहीं आएगी, उनको पता चल गया होगा कि मंगोलपुरी की सीट आम आदमी पार्टी और राखी बिरला भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। Long speeches, promises, complaints and political snarls. हम अगर 49 दिन में रिश्वतखोरी बंद कर सकते हैं, 8 महीने में बीजेपी वाले ने रिश्वतखोरी बंद नहीं कर सकते क्या? मेरी कोई दोस्ती नहीं है अनिल अंबानी से, मैं कभी जिंदगी में नहीं मिला उनसे। मेरा अगर रिश्ता है तो आप लोगों के साथ है, मेरी दोस्ती है तो आपके। Arvind Kejriwal addressed a wave of supporters at his campaign rally. सब लोग मिलकर लड़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जब जब पैसे और जुनून के बीच में जंग हुई है, हमेशा जुनून जीतता है, पैसा हारता है। इस बार भी सच्चाई की जीत होगी। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे साथ भगवान है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते में चल रहे हैं। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अगर ये बहन आ गई जिसको इस नेतृत्व ने लाया है, कोई विश्वास से लाए, विश्वसनीय लाए, जो अपनी बात झूठ नहीं बोलती। इन्होंने नारा दिया था ना, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद हो गई क्या? बढ़ गई है जी रिश्वतखोरी। पहले जो काम 1000 रुपए का होता था, आजकल 3-3 हजार रुपए लगते हैं। With the BJP projecting Kiran Bedi as its chief ministerial candidate, the Delhi Assembly election has become a direct contest between Bedi and Kejriwal. इन्होंने कोई मकान बना के नहीं देने जी, झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं जनता को चुनाव के पहले। ये बीजेपी वालों की प्लानिंग है। दिल्ली में 1 साल में सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। जिस जमीन पे झुग्गियां हैं, ये जमीन इनको कुछ अमीर लोगों को देनी है, आपकी झुग्गियां कर देंगे साफ। A former IRS officer locking horns with a former IPS officer. छोटी ट्रिलियन इकोनॉमी से 20 ट्रिलियन इकोनॉमी को लाने वाला हमारा नेता श्री नरेंद्र मोदी, जो इतिहास बनाने को जा रहा है। इतिहास राष्ट्र में बन चुका,
अब बारी है दिल्ली की। For one, the Janta magic works, and for the other, perhaps the Modi magic would work. Kiran Bedi has stopped talking to media as opposed to you. She's not interacting, कोई joint ना press conference हो रहा है ना bites हो रहा है. What do you think is happening? It's up to her. You think it's up to her? Yeah. No personal attacks or what are you? Is that what you're trying to avoid? Why should we attack each other? That's not the purpose. The purpose is the issues. लोगों के मुद्दे क्या हैं? लोगों के मुद्दे दिल्ली में आज महंगाई की वजह से और रिश्वतखोरी की वजह से लोग बहुत दुखी हैं। वो इश्यूज हैं, उस पर बात करते हैं ना, उस पर डिबेट भी होना चाहिए। जैसे मैंने किरण जी को कहा था कि आओ डिबेट करते हैं। And हाँ भी बोला था उन्होंने शायद initially. शायद आप लोगों के चैनल पे बोला था, तो हाँ बोला था। मैं तो चाहता हूँ कि डिबेट हो, अर्नब गोस्वामी उसको मॉडरेट करें, हम तीनों कैंडिडेट्स आएँ, तो होना चाहिए। Throat infection तो वैसे आपको भी रहा है, if I can just push it in for as many years as I remember. Do you think that can be an issue? I'm just asking. Or do you think it could be because statements उनकी बहुत controversial हो रही हैं? I'm not asking for a personal attack. I'm not trying to get anything out of you. I'm just trying to know what you think. नहीं, I don't think anything. अगर वो बीमार हैं, वो रेस्ट ले रही हैं, I wish her good luck and I pray that she gets well soon. भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी ठीक हो जाए। चलिए, fair enough. अच्छा, BJP has decided not to issue a manifesto, but apparently a vision document. Do you think there's a difference, or do you think it's all the same? वो मैनिफेस्टो नहीं ला रहे? नहीं, it's a vision document वो आएगा, no manifesto. Is it? You look shocked. It's really shocking नहीं? मतलब that means उनके पास कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली के लिए। मैनिफेस्टो एक्शन पॉइंट होता है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो उनके पास दिल्ली के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसका मतलब that's very surprising, बहुत shocking है। In the whole issue of Kiran Bedi के against BJP leaders आपको contact कर रहे हैं, you've not been naming them, but the fact is infighting तो हो रही है। तो उस infighting में आपको ऐसा कौन लगता है which are the leaders who could benefit or who would want it or who are upset? ये तो आपने बोला है कि there are leaders, so clearly fans continue to meet you, but there are leaders who could really be upset. They've been in the party for very long. Who do you think could really? देखिए अभी तक क्या हो रहा था, किरण जी के आने के पहले ये सारे अलग अलग लड़ रहे थे आपस में। अब ये सारे यूनाइट हो गए हैं और इन्होंने सबने मिलकर तय किया है कि किरण जी को हराना है, लेकिन ये उनकी अपनी अंदर की वो है, हमें उसकी चिंता नहीं करनी। अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप कैसे इतना कॉन्फिडेंट है किरण बेदी गेम चेंजर नहीं हो पाए? आप ही लोगों के तो सर्वे बता रहे हैं, अब तो हम भी नहीं कह रहे। दो तीन चीज़ें देखिए, एक तो जिस तरह से जनता आ रही है, जितनी लार्ज नंबर में जनता आ रही है हमारी सभा, आम आदमी पार्टी की सभाओं में, रोड शोज़ में, इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। पिछले साल विधानसभा के पहले जितने लोग आ रहे हैं उससे 3-3, 4-4 गुना लोग आ रहे हैं। और केवल मेरी सभाओं में नहीं, हमारे हर लीडर की सभाओं में, योगेंद्र यादव की सभाओं में, आशुतोष की सभाओं में, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, जस्सी जसराज, दिलीप पांडे, इनकी सबकी सभाओं में खूब लोग आ रहे हैं। उधर बीजेपी की सभाओं में कोई नहीं आ रहा। उनके कल मेरे को पता चला उनके बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे, कैबिनेट सुषमा स्वराज जी आई हुई थी, बता रहे 150 लोग थे उनकी सभा में। स्मृति ईरानी जी आई हुई थी, कोई बहुत कम लोग थे। Is this cabinet versus केजरीवाल or do you तो think मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ ये रिएक्शन, Times now. Action begins here. A litmus test for the Aam Aadmi Party chief Arvind is challenging both the Congress and the BJP. 15 साल से आप लोग भी यहाँ पे कांग्रेस को वोट देते आए, लेकिन कांग्रेस ने इतना लूटा दिल्ली को कि दिल्ली वालों ने पिछली बार कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया। Extremely dogmatic in his approach, as he believes that he is going to pass this test with flying colors. मैं आपको एडवांस में बधाई देने आया हूँ। पूरी दिल्ली में मैं घूम रहा हूँ, जनता के बीच में घूम रहा हूँ। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि 15 फरवरी तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर भारी बहुमत से बनने वाली है। Rahul Gandhi, even though you say Congress is तो race में नहीं है, but Rahul Gandhi has asked you and said that Aam Aadmi Party has only one agenda, and that agenda is that
Congress government should not come to power, and your leader Kiran Bedi has also joined BJP. Enough proof that your agendas are set. सो आपको नहीं लग रहा कांग्रेस वाले बीजेपी को अटैक नहीं कर रहे, आम आदमी पार्टी को अटैक कर रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस को अटैक नहीं कर रहे हैं, आम आदमी, ये सारे इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ। मेरा कसूर क्या है? इस देश के सबसे बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है। हमारा कसूर क्या है? 49 दिन के अंदर हमने दिल्ली से रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। हम लोग 24 घंटे ये सोचते हैं कि दिल्ली को कैसे ठीक करेंगे, ये लोग 24 घंटे ये सोचते हैं केजरीवाल को कैसे हराएंगे। बीजेपी और कांग्रेस अंदर ही अंदर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए बीजेपी कांग्रेस में से, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। एक चीज one thing that I've noticed, Arvind, is this strategy this time elections में your politics has been very attacking and the Congress and the BJP have been forced to constantly defend. They are saying allegations है, आपके evidence नहीं है, but do you think this attacking strategy, रोज every morning some tweet, every morning some other issue coming up, do you really think that this is going to work for you or could it backfire? हम तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, हम कहाँ नेगेटिव कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं 20 नए कॉलेज खोलेंगे। Volunteers, like you said today, that volunteers are being approached. Your senior BJP leader is arranging fake statements. पर ये तो सच्चाई है, इसको छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कहता हूँ हम दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलेंगे, वो लोग कहते हैं केजरीवाल नक्सली है। मैं कहता हूँ हम दिल्ली में CCTV कैमरा लगाएंगे, वो लोग कहते हैं केजरीवाल को जंगल भेज दो। मैं कहता हूँ हम दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हर बस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे, वो लोग कहते हैं केजरीवाल बंदर है। नुपुर शर्मा जी ने कहा। हमारी पॉलिटिक्स नेगेटिव है, उनकी पॉलिटिक्स। एक फाइनल सवाल अरविंद, जो लीडर्स के विद इन इनफाइटिंग का जब इशू आ रहा था, यू हैवंट नेम्ड दोस लीडर्स, हु आर द लीडर्स हु हैव कांटेक्टेड यू अरविंद? सारे अंदर से लड़ रहे हैं, हाउ डज इट मैटर? सीनियर वंस इन द सीनियर, सारे सीनियर जूनियर सब लड़, पूरी दिल्ली की बीजेपी इस टाइम आपस में एक दूसरे को बीजेपी को हराने में लगी हुई है। वो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो आपस में लड़ रहे हैं। किसने कांटेक्ट किया आपको, ये आप हमें नहीं बता रहे? भाई कोई उधर वाली साइड का अगर हमें मदद करे तो मैं उसको क्यों, मैं उसका नाम बताऊं, वो बेचारे की राजनीति। बट यू हैव इनफ एविडेंस ऑफ दैट? क्यों एविडेंस नहीं, अभी आपकी तरफ से अजम्पशन है, एलिगेशन है जो मान के चल रहे हैं। मत मानो ना, क्या फर्क पड़ता है? आप मानो ना मानो, क्या फर्क पड़ता है? बट यू थिंक दिस इज हैपनिंग, डू यू एग्री विद दैट? भाई सबको, आपने खुद ही कहा अभी इनफाइटिंग चल रही है, सबको ही पता है इनफाइटिंग चल रही है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस बीजेपी आपको अब कैसे अटैक करने वाली है? They've just done a press conference. अमित शाह and other senior leaders are going to ask you 5 questions. मैं आज के 5 सवाल आपको वैसे बता देती हूँ, whether or not you want to answer. सिक्योरिटी नहीं चाहिए थी आपको, आपने ले ली। चार्टर्ड प्लेन आप बोले थे नहीं फ्लाई करेंगे, उसमें you've done. SUV आपको नहीं चाहिए था, दिल्ली पुलिस का कवर नहीं चाहिए था, आपने कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लेंगे। सो ये 5 मुद्दे जो आज के, कल 5 मुद्दे और आएंगे। How will you respond to any of them? Do you want to respond? मैं कहता हूँ आ जाओ, खुल के डिबेट करते हैं। अर्नब गोस्वामी उसको वो करेंगे, किरण बेदी जी आ जाए, मैं आ जाता हूँ। वो तो आ नहीं रही, she's not talking. क्यों नहीं आ रही? ये पर्दे के पीछे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर्दे के पीछे क्यों पूछ रहे हैं क्वेश्चन? आओ ना, जनता के क्वेश्चंस का जवाब दो। डर क्यों लग रहा है बीजेपी वालों को? जनता के क्वेश्चंस का जवाब क्यों नहीं देना चाहते वो लोग? 5 क्वेश्चन पूछेंगे जी हम, आओ ना, करते हैं डिबेट में, मना थोड़ी कर रहा हूँ। आओ डिबेट करते हैं, क्यों नहीं डिबेट कर रहे वो लोग? आवाज दो। प्रधानमंत्री को कहा था कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए एक जॉइंट कमेटी बनाई जाए जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून बनाए। An architect of Anna Hazare's anti-corruption campaign in 2011, Arvind zoomed into public glare and national stage with Anna Hazare's movement to pass the Jan Lokpal bill. शरद पवार इस देश का भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाएंगे। उस कमेटी में मोहिनी साहब हैं, उस कमेटी में कपिल सिब्बल हैं, जिनको 2G में घोटाला नजर नहीं आता है। ये सब लोग अगर इस देश का भ्रष्टाचार निरोधक कानून बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता इस देश में कभी भ्रष्टाचार दूर होने वाला है। Though Hazare is recognized as the face of the anti-corruption campaign that began with his fast on 5th April 2011, Kejriwal left no stone unturned to realize the dreams of a corruption-free India. Apart from this, एक जो आपके गुरु लीडर माने जाते हैं, and there have been enough controversies. Anna Hazare is going to begin campaigning in March. He's going to campaign alone. Arvind, whether you become the CM or not, are you going to express support to him, or don't you think it's too sad that all his
prodigies have taken over. अपने अपना उन्होंने politics में enter कर लिया है, but he's going to campaign alone. जो भी सपोर्ट मुझसे बन सकेगा मैं तो पूरी तरह से उनके हर आंदोलन में साथ रहा हूँ। आप फिजिकल प्रेजेंस दे पाएंगे? अगर वो मना नहीं करेंगे तो वो कई बार कहते हैं मैं अरविंद को स्टेज पे नहीं आने दूंगा और ये वो, अगर वो मना नहीं करेंगे मैं तो उनके हर आंदोलन में साथ हूँ। Do you think he's still angry with you? Do you think that perhaps he says that because he doesn't trust you anymore? No, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, he doesn't trust me। आप ऐसी नहीं मैं I'm not हमारे trying बीच में आप वो कर रहे हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि उनको राजनीति में नहीं आना, राजनीति गंदी चीज़ है। हम राजनीति में आ गए क्योंकि हमें लगा कि कीचड़ में घुस के ही सफाई करनी पड़ेगी। वहाँ पे मतभेद है, डिफरेंस ऑफ। It's evening and Arvind Kejriwal is all set to proceed with his bandwagon to address another large gathering in the by-lanes of Kirari. The enthusiasm and the crowd cheer is even bigger this time. भारत माता की इनकलाब इनकलाब। बहनों भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, दोस्तों, आज आप लोग इतनी भारी संख्या में इतनी ठंड में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि विधायक साहब को और सारी पार्टियों को संदेश मिल गया होगा कि आम आदमी पार्टी किराड़ी विधानसभा भारी बहुमत से जीतने वाली है। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि 15 फरवरी तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर भारी बहुमत से बनने वाली है। 15 साल तक दिल्ली में कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने लूट लिया। पिछली बार चुनाव में आपने कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने बीजेपी को बड़ी उम्मीद लगा के वोट दिए थे, भारी बहुमत से जिताया था, बड़ी आस लगाई थी कि बीजेपी वाले कुछ करेंगे। लेकिन आज 8 महीने के बाद जब मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं, जनता कह रही है जी धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। इन्होंने चुनाव के पहले कहा था, बोले महंगाई कम करेंगे। इन्होंने नारा दिया था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जनता ने सोचा महंगाई दूर हो जाएगी, इनको वोट दे दो। जनता ने बेचारी ने वोट दे दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, महंगाई कम हो गई क्या? हर चीज महंगी कर दी इन्होंने, हर चीज महंगी कर दी। घर चलाना मुश्किल हो रहा है जी आजकल। इन्होंने सब्जियां इतनी महंगी कर दी, इन्होंने दूध के दाम बढ़ा दिए, इन्होंने फ्रूट्स के दाम बढ़ा दिए, इन्होंने दालों के दाम बढ़ा दिए, इन्होंने रेल के किराए बढ़ा दिए, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए। और अभी 2 महीने पहले 108 दवाइयों के दाम 10-10 गुना कर दिए। 108 दवाइयों के, कैंसर की दवाइयों के दाम बढ़ा दिए, ब्लड प्रेशर की दवाइयों के दाम बढ़ा दिए। तो इन्होंने धोखा दिया जी। चुनाव के पहले कह रहे थे महंगाई दूर करेंगे, महंगाई दूर नहीं करी, महंगाई बढ़ा दी इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं, हमने अगर 49 दिन में रिश्वतखोरी बंद कर दी थी, ये बीजेपी वालों से 8 महीने में रिश्वतखोरी बंद क्यों नहीं हुई? या तो इनको करनी नहीं आ रही या इनकी नीयत खराब है। अगर इनको करनी नहीं आ रही तो हमको बुला ले बीजेपी वाले, हम सिखा देंगे इनको। करनी तो इनको भी आती है, नीयत खराब है। Now Arvind Kejriwal is addressing the crowd right behind me at a public meeting, and the location is Kirari. But while he's addressing his supporters and of course the volunteers, we have decided to just come a little away from this very location and just try and talk to people who do they really support and why are they here. आप लोग ने टोपी पहना है, तो केजरीवाल का इन्फॉर्मेशन आ गया था पहले से ही क्या कि ये आएंगे, रैली देंगे यहाँ पे, और आप उनको सुनने के लिए आए हैं? कल उनका प्रोग्राम पता लगा था, आज का प्रोग्राम है, सुनने के लिए लाए हैं। तो
अभी आप सुन रहे हैं जब उनको थे तो क्या आपको लग रहा है इस पार्टी को लेके? बहुत अच्छा लग रहा है, जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा, आपकी बार फुल बहुमत से जीतेगा जी, बिल्कुल जीतेगा जी। आप यहाँ पे अरविंद को सुनने आए हैं कि अपने कैंडिडेट को सुनने आए हैं यहाँ पे? दोनों, क्योंकि हमारा कैंडिडेट जीतेगा तब जाके गवर्नमेंट बनेगी, और सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनके पास विज़न है। यूथ के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टो में अपने डाला हुआ है, और अभी तक बीजेपी के पास कोई मैनिफेस्टो समझ में नहीं आया कि क्या होगा इनका, तो इसलिए हम सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम आए इनको आप सुनने। अंकल जी अरविंद को, केजरीवाल को सुनने आए हैं, लेकिन आपने सुना अरविंद किरण बेदी को कुछ कहते हैं, किरण बेदी उनको कुछ कहती हैं, तो ये तो आपस का झगड़ा नहीं लग रहा है आपको? मैम, अगर किरण बेदी का बैक हिस्ट्री देखा जाए तो ये कोई सक्सेसफुल नहीं सर। ये आईपीएस में भी डीसीपी थी, तब भी इसने वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया। इवन ये आईजी बन के मेघालय मिजोरम में गई, वहाँ भी इसने जो है एमबीबीएस की सीट अपनी लड़की को दिलवाई। फिर इनकी क्या हिस्ट्री? केजरीवाल तो शुद्ध केसर, कस्तूरी जैसी महक केजरीवाल में है। केजरीवाल एक साफ आदमी जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, बहुत सच्चा आदमी। अच्छा, यहाँ पे कौन है जो शायद केजरीवाल को नहीं पसंद करते? कोई ऐसा है जो मुझे बोलेंगे कि थोड़ा सा गड़बड़ है? आपको नहीं पसंद, बताइए आपको क्या ऑब्जेक्शन है उनसे? पहला ऑब्जेक्शन ये है मेरा कि ये जो छोड़े क्यों गए 49 दिन में, और दूसरा ये कि जो आपने फ्री इन्होंने जो भी किया है, क्या ये बता सकते हैं इतना पैसा कहाँ से लाएंगे जो हर चीज़ फ्री करेंगे जनता को? इनके पास एजेंडा है, स्ट्रैटेजी है, इनके पास प्लान है, तो जनता को बताए ना पहले। तो आप दूसरी ऑप्शन ये कि हर किसी व्यक्ति पे आरोप लगाना ठीक नहीं है, बिना सबूत किसी व्यक्ति पे आरोप लगाना ये ठीक नहीं है राजनीति में। एज अ यंग पर्सन आपको लगता है, आप यहाँ पे हैं, या तो जनरली सब थोड़ा 30 के ऊपर ही लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पे जो यंग एक प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, आपको लगता है केजरीवाल जैसा चेंज जरूरी है? देश में चेंज जरूरी है, चाहे वो केजरीवाल हो या फिर कोई भी हो। हाँ। लेकिन ये कुछ कर पाएंगे लगता है? लगता है। Okay. So clearly it's very interesting, but the fact is that people here in Delhi have an opinion. Whether they agree with Arvind Kejriwal, whether they think he's lying, he's exaggerating, the fact is the Delhi voter is becoming increasingly aware of his choices, and that is perhaps where Aam Aadmi Party has come into the picture. हमारी 49 दिन की सरकार थी, 2 बार डिपार्टमेंट आए, बोले झुग्गी तोड़नी है। मैंने कहा जब तक मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं एक भी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा, किसी का घर नहीं टूटने दूंगा। मैंने एक भी झुग्गी नहीं टूटने दी 49 दिन में। ये कहां ले जा रहे हैं बीजेपी वाले अपने देश को? सारे के सारे नेता औरतों के पीछे पड़े हैं। इस बार औरतें कह रही हैं, मैं महिलाओं से बात करता हूं, महिलाएं कह रही हैं मजा चखाएंगे इनको दिल्ली के चुनाव में, एक भी औरत वोट नहीं देने वाली इनको। बिजली का मीटर किस किस का तेज चल रहा है, जरा हाथ खड़े करो। सारों का ही तेज चल रहा है। ये मीटर किसने लगाए हैं? आज मैं कागज लाया हूं आपको दिखाने के लिए। भाई साहब, ये पंजाब केसरी अखबार है। इस अखबार में लिखा है कि ये बिजली कंपनियों के साथ बीजेपी के नेता मिले हुए हैं। मैं नहीं कह रहा, अखबार में लिखा है कि बीजेपी के नेता बिजली कंपनियों के साथ मिले हुए हैं। और ये कागज लाया हूं जी, मैं बिना कागज के कोई बात नहीं करता। ये केस कर देते हैं मेरे ऊपर, इन्होंने बहुत केस कर रखे हैं मेरे ऊपर, पर मैं डरता नहीं हूं इनसे। इन कागजों में लिखा है कि ये जो बिजली के मीटर आपके घरों में लगे हैं, ये बिजली के मीटर जिनको आप लोग कह रहे हैं कि तेज मीटर चल रहे हैं, ये मीटर बीजेपी के नेताओं की कंपनियों ने लगाए हैं। बोले केजरीवाल धरना करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं जी, मैं धरना अपने लिए थोड़ी करता हूं, धरना आप लोगों के लिए करता हूं। मैंने 15 दिन अनशन किया था। 15 दिन मैंने बिजली और पानी के बिलों के खिलाफ में भूखा रहा था। शुगर का मरीज हूं मैं, डायबिटीज की बीमारी है। सारे डॉक्टरों ने कहा था कि अगर केजरीवाल 48 घंटे से ज्यादा भूखा रहेगा ये जिंदा नहीं बचेगा। मैं 15 दिन भूखे रहा था। मैंने 15 दिन का अनशन अपने लिए नहीं किया था, दिल्ली वालों के लिए किया था, बिजली के बढ़े हुए बिलों के खिलाफ किया था। इंकलाब, इंकलाब, अन्ना हजारे।
A look back at Arvind's tryst with politics will bring in hues of different shades. हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं अन्ना जी का। बहुत-बहुत शुक्रिया। भारत माता की! भारत माता की! It was in the year 2012 that Arvind entered politics by launching the Aam Aadmi Party, a party with a vision to make politics a noble calling. मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। In 2013, he defended the then Chief Minister Sheila Dikshit in the Legislative Assembly elections and took office as the Chief Minister of Delhi. 28th December 2013 to 14th February 2014. His days as the Chief Minister of Delhi were numbered. इनको ये लगा कि ये केजरीवाल के पास अभी तो एक छोटी सी एंटी करप्शन ब्रांच है, उसी से इसने नाक में दम कर रखा है। अगर जन लोकपाल बिल आ गया तो इनमें से आधे से ज्यादा जेल। After failing to table the Jan Lokpal bill in the assembly, he ended his 49 days of rule. Not all went well when the AAP party displayed a dismal performance at the Lok Sabha elections. From an ordinary government officer to a fiery anti-corruption crusader, the rise of Kejriwal has seen both the tides. He might just be a beginner in Indian politics, but for many he is also a symbol of hope. Hope to change the system. 10:30 p.m. and Arvind Kejriwal has finally arrived back at his residence. It is over 12 hours and Arvind, just you are ending your day. 12 घंटे से तो आप बाहर हैं. How was your day? Was it tiring? It was quite good. It was Very quite good. exciting. In fact, जो जनता का रिस्पांस मिलता है ना, उससे एनर्जी आती है बहुत ज़्यादा। You're not tired. 12 घंटे से तो हम आपके पीछे थोड़ा at least physically tired है, but quite charged up But with the response. you are all geared up. Is it going to be like this every day? It is always every day like this. Thank you so much. That was Arvind Kejriwal. We tracked him for 24 hours. We in fact got tired because early morning he left from his house, attended public meetings, and now at 10:30 p.m. the day finally ends. Perhaps not yet because there would be a lot of phone calls that he would have to attend, but that was the access show. Arvind Kejriwal, the chief ministerial candidate of Aam Aadmi Party, with criticism, with praise, continues to face all of it, and definitely what will be the result will be the public's choice. But he says he's ready for a debate. Will there be a debate remains to be seen.